Recording in progress. We start with the lecture. Is there any question from the yesterday's lecture? It was very important because IP is the core. IP is the core. Is there any question related to the lecture yesterday? Zilla responded that no, it means everything clear. So just for what we studied yesterday, we covered the first three topics which are on the screen. Number one, we talked about the IPv4 address structure. This structure, we talked about that the address, the IP address consists of 32 bits, and it is a hierarchical address. By hierarchical address, we mean that the address consists of, we talked about yesterday two, but today we'll talk about three. Into three different parts it can be broken down. Like for example, your home address is a hierarchical address. How I can say it is hierarchical? Like for example, your home is in Hayatabad, let it be. So how we write your name, then the sector, then the phase, then the city, the home number, and all this. Just give me a minute. Okay, so we talked about how is the voice quality today? How is the voice quality today? Good. Okay. So as compared to yesterday, it means because I'm using a different mic today. So just to find out whether the low quality has Jahangir is saying that the quality of the sound is low. Is it? Please respond. Whether the quality of sound today is poor. Is it poor, Jahangir? For Jahangir, is it poor still? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड अगर जल्दी कर दिया करें तो आप लोगों को बेहतर वो मिलेगा. अगर जहांगीर, मैंने आपका माइक ओपन कर दिया. इज इट द क्वालिटी ऑफ द साउंड पुअर टुडे? सो लेट्स स्टार्ट देन. पहले वाली ठीक थी, इससे में साउंड थोड़ा स्लो है. ओके, नाउ हाउ इज द साउंड क्वालिटी नाउ, जहांगीर? इज इट इंप्रूव्ड नाउ? Yes, okay then fine. So I will use the पहला वाला ही हम इस्तेमाल करेंगे. So we throw it out. So yesterday we talked about this IP structure. तो जैसे मैंने कहा कि आपका जो
घर का एड्रेस मैंने आपको एग्जांपल ली, इट इज हायरार्की, व्हिच मींस लेट करेंगे अगर आपका खत पेशावर से कराची जाना है तो पेशावर वाले सिर्फ ये देखेंगे कि जी इट हैज टू गो टू कराची। देन कराची पहुंचने के बाद देखा जाएगा कि कराची में किस जगह पे जाना है, कैंट में जाना है, डिफेंस में जाना है, कहाँ पे जाना है। वहां पे पहुंच के मालूम करना है कि जी कौन सी स्ट्रीट में पहुंचना है या कौन से सेक्टर में या फेज में पहुंचना है। देन फेज में पहुंचने के बाद कौन सी स्ट्रीट में पहुंचना है, तो इट इज, एंड देन स्ट्रीट में कौन से घर में पहुंचना है, और फिर घर में किस किस शख्स के पास पहुंचना है, तो इट इज ए हायरार्की। सिमिलरली द आईपी एड्रेस इज हायरार्किकल। क्यों हायरार्किकल है? क्योंकि कल हमने इसमें देखा था इसमें नेटवर्क पार्ट अलग होता है और होस्ट पार्ट अलग होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? फिर हमने बात की कि इसका जो सोर्स, इसमें जो एक पार्ट को हमने एक नाम दे दिया था अबाउट दी नेटवर्क पार्ट, तो इसका मतलब कि हमारे राउटर्स जितने भी रास्ते में हैं दे विल नेवर लुक एट दी डेस्टिनेशन होस्ट, क्योंकि दे हैव टू ओनली लुक एट दी नेटवर्क। जैसे पेशावर से मैंने किसी कहा कि आपका लेटर पेशावर से कराची जा रहा है, तो लेट करें कि पेशावर से पहले वो रावलपिंडी ने ये नहीं देखना कि किस शख्स के नाम पे जा रहा है, वो ये सिर्फ देखेगा कि कराची है, दे विल मे सेंड इट टू लाहौर, लाहौर में सेंड इट टू दी मुल्तान, मुल्तान में सेंड इट टू दी फर्दर, and finally it will reach to Karachi. So it means, look, if it is like an hierarchical, that when it reaches to the Karachi, then the next step will be whether it has to go to the defense or whether it has to go to DHA or any other place. Then when it reaches to DHA, then we will look at in which sector. When it reaches to the sector, then we have to look at in which street. When it will reach to the street, we will look at it to which home, and when we reach to the home, we will look at to which destination, which means to which person, right? So it was hierarchy. Similarly, यहाँ पे भी we have a network part different. So all the routers on the way will be using the network address to take the packet from from the source up to the destination. Okay. So the other part is the finally when it reaches to the network, then it has to be looked at whether to which host in the network. So that is the second. Third, आज हम इसमें ऐड करेंगे that will be the subnet, to which subnet, which is the small network may I call it. So we will talk about that today even. Then we talked yesterday about that the IP address might be a unicast address or a broadcast address or a multicast address. So as I said earlier, that the IP address is composed of the 32 bits. So it starts from 000, which means 32 zeros up to 32 ones. So from your simple DLD, you know that there is 2 power 32 different options. Among these 2 power 32, which becomes around 4.3 billion, so we said that the divided, some of the addresses are among these may be used for the unicast. What I mean by unicast, I explain again. Some are used for the broadcast and some are used for the multicast. The unicast is the one address which is used to send your information to only a single host in the whole globe. So we call it a unicast address, and such transmission is called unicast communication or unicast transmission. Then the broadcast is when we want to send it to all. Like जैसे मैंने कल example ये दी थी कि when I am talking to you people now, all of you are getting this voice, this video and everything. So this is a somewhat like a broadcast. But when I send a message to a particular person, that becomes a unicast. But when I send to a certain group, not to a single, not to all, but a single group, we call it a multicast. And we said about that there's a special IP addresses which start from 224.0.0.0 up to 239.255.255.254. So this is a range of IP addresses which has been assigned for multicast. Okay. Then we talked about the type of IPv4 addresses. So we said that these addresses can be private, can be public, and can be reserved. In the private addresses, we said that these are the addresses which move on the global internet. They can be only used within the network. So within the LAN, for example, with these addresses, we cannot go out of the network. But हमने देखा कि कल मेरा IP address जो था that was 192.168.1.4, which is a, हमने देखा कौन सी ranges हैं. हमने देखा कि 10.0.0.0, 172.16.0.0 and 192.168.0.0
ये 3 रेंजेस जो हैं ये दे आर डेडिकेटेड फॉर दी प्राइवेट एड्रेसेस। फिर हमने कल ये भी देखा कि जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमने कहा जी दिया है ना। फिर हमने ये भी देखा कल के प्राइवेट एड्रेसेस जो हैं ये एक स्टैंडर्ड के जरिए हमें मिले हैं, और स्टैंडर्ड का नाम था आरएफसी के जरिए हमें ये स्टैंडर्ड मिला, विच इज कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, एंड दिस आरएफसी इज 19180 इफ यू रिमेंबर। फिर हमने इनको एड्रेसेस को पब्लिक में जो है पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो हैं दे आर जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। इसका मतलब उनके जरिए हम, जैसे हमने कल एग्जांपल ली थी यूट्यूब की फॉर एग्जांपल, और उसको हमने पब्लिक आईपी एड्रेस देखकर बताया था कि जी ये इसका पब्लिक आईपी है क्योंकि ये प्राइवेट में लाई नहीं करता। फिर हमने देखा कि हमारे जो नेटवर्क्स हैं उनमें ये दोनों इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मैंने उसी यूट्यूब को ट्रेस आर्टिंग किया था, तो कई एड्रेसेस जो थे वो 10 डॉट से स्टार्ट हो रहे थे, कहीं 172.16 से स्टार्ट हो रहे थे, कुछ 192.168 से स्टार्ट हो रहे थे, और कुछ नहीं हो रहे थे। तो जो हो रहे थे दे आर पब्लिक प्राइवेट सॉरी, एंड द रिमेनिंग आर पब्लिक। फिर हमने कहा कुछ रिजर्व भी हैं, जिसको हमने पीपा का एग्जांपल ली थी, जो कि सेल्फ असाइन हो जाता है। सो हमने देखा कि जी कुछ एड्रेसेस इस किस्म के भी हैं जो कि विंडोज की मशीन इस्तेमाल करती हैं, तो दैट वाज समथिंग विच वी कवर्ड। फिर हमने इसको एड्रेसेस को 5 क्लासेस में भी डिवाइड किया। हमने कहा कि आईपी एड्रेसेस क्लास फुल भी हो सकते हैं और क्लास लेस भी हो सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हमने जिस चीज पे एम्फसाइज किया दैट वाज क्लास लेस, क्लास फुल, और हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एक्सप्लेन किया। ए बी सी जो है वो पब्लिक नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं टुडे। क्लास डी जो है दैट इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, एंड क्लास ई इज फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस। हमने ये कल भी ये चीज देखी थी और डिफरेंट बाउंड्रीज को भी डिस्कस किया था। सो टुडे वी स्टार्ट विद द नेटवर्क सेगमेंटेशन। इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? Salman said no. Anyone else? Okay. So there is no, so it means everything is good. Then I move further and I come to the network segmentation. सबसे पहले ये बताता चलूं कि network segmentation कहते किसे हैं. So the answer is, give me a little attention please. Network segmentation का मतलब है you divide your whole network into smaller pieces. So we call it network segmentation. जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी एक एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं कि हमारी यूईटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल है, केमिकल है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, एक्सेट्रा बेसिक साइंसेज है। सो एक तरीका तो ये है कि हम इनमें अपने पूरा जो यूटी का नेटवर्क है उसको हम इन डिपार्टमेंट्स के वाइज डिवाइड कर लें, तो दिस इज सेगमेंटेशन। इसका मतलब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको यूं डिवाइड कर दें कि जी स्टूडेंट का अलग नेटवर्क, उसी एक बड़े नेटवर्क के अंदर वी से दैट दिस इज द स्टूडेंट्स नेटवर्क, दिस इज द faculties network, this is the administration staff network. So it means we divide it like this. It may be the third option can be where we divide it depending upon the space. हम कह सकते हैं कि जी this is the one of the building, that's the second building, that's the third building. So building wise we divide our network. There can be, there may be the functional wise, maybe some of the devices host, maybe the servers, maybe something, maybe the intermediate devices, or someone maybe the whole end devices which are used by the students. So we can divide them based upon their functionality even. So this is something which we called as the segmentation. Is it clear everyone? Yes sir. Okay, good. So let's move then. अब एक इसका जो फायदा है क्यों सेगमेंटेशन करते हैं, इसका फायदा ये है कि सेगमेंटेशन करने का एडवांटेज ये है कि बाज केसेस में हमारे लोकल नेटवर्क्स में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। अगर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूं, वन ऑफ द एग्जांपल जब हम 2 चैप्टर पहले पढ़ रहे थे आर्क, अगर आपको याद हो, हम आर्क पढ़ रहे थे और आर्क में हमने बात की थी, आर्क में हमने बात की थी कि हम इससे क्या करते हैं, हम आर्क के जरिए
मैसेज जो होता है हम एड्रेस आर्प के जरिए क्या करते हैं, हम मैक एड्रेस हासिल करते हैं। अगर हमें किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस पता हो और हम मैक एड्रेस फाइंड करना चाहें तो हम इसके लिए आर्प यूज करते हैं। यही अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले, yes very good Salman, we send a ARP request. Now this ARP request is a broadcast. हमें तो नहीं पता कि मिसाल के तौर पे जिससे कल हमने एग्जांपल ली थी कि अगर हम क्लास ए नेटवर्क में हैं तो क्लास ए नेटवर्क में एक नेटवर्क के अंदर तकरीबन 16 मिलियन डिवाइसेस हो सकते हैं। कितने? 16 मिलियन। अगर हमने देखा था कि क्लास बी हो या क्लास सी हो तो देयर इज सर्टेन नंबर एंड दिस नंबर मे बी बिग। तो अगर हमने कल हमने कहा कि लेट इट बी इफ इट इज 16 मिलियन डिवाइसेस इन आवर नेटवर्क, अगर कोई आर्प करता है तो दिस आर्प विल गो टू 16 मिलियन होस्ट्स और डिवाइसेस व्हिच इज, और अगर ये सारे के सारे ही आर्प करना शुरू कर दें तो देयर विल बी अ ह्यूज ट्रैफिक व्हिच इज ऑफ नो यूज फॉर द डिवाइसेस, फॉर द एप्लीकेशंस। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आपको ये दे सकता हूं कि जब भी आप किसी नेटवर्क के अंदर आते हैं, मिसाल के तौर पे आप सब लोगों जो थे जब लैब 1 में आके क्लास लेते थे तो जो ही आप क्लास लैब 1 में इंटर होते थे आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाता था, याद है ना? आप लोग कनेक्ट हो जाते थे, चाहे वो हमारे मुख्तलिफ वो थी एक्सेस पॉइंट या रूटर्स लगे हुए थे, तो रूटर वायरलेस रूटर के साथ आप कनेक्ट हो जाते थे। तो आप क्या करते थे, जो ही आप आते थे आप सबसे पहले ढूंढते थे कि मेरा डीएचसीपी कौन है, इस नेटवर्क में कोई डीएचसीपी है, तो उसका मतलब आप ब्रॉडकास्ट करते थे क्योंकि आपको तो नहीं पता कि डीएचसीपी कौन है, तो डेफिनेटली यू हैव टू ब्रॉडकास्ट। तो अगर किसी नेटवर्क में बहुत ज्यादा लोग आना जाना कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर बी अ लॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट, और अगर नेटवर्क में बहुत ज्यादा वो हैं नोड्स हैं तो डेफिनेटली द लॉट ऑफ ट्रैफिक विल बी ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट व्हिच विल बी वेस्टिंग आवर बैंडविड्थ, which will be wasting in this way। जब बैंडविड्थ आपकी वेस्ट होती है तो यू अंडरस्टैंड कि आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क थ्रूपुट गुडपुट कम हो जाएगा। ओके, so which is not desired। So one of the reason to do this segmentation is to make your larger network smaller networks, convert these larger into, we divide these larger network into smaller chunks and we call each as a subnet, in this way your broadcast domain becomes smaller। लेट करें कि पहले अगर हमारे पास 1000 नोड थे, हमने उसके 20 सबनेट बना दिए, तो अब हर सबनेट के अंदर 50 नोड, अब आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा हो गया है, विच इज डिजायर्ड। क्लियर एवरीवन? नो, वेरी गुड, आई गो फर्दर। देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जी आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं क्योंकि बड़ा है, तो और मेरे ख्याल है उसमें 5 सेक्शंस होते हैं, आई अज्यूम। तो हमने ये क्यों किया? हमने इसलिए किया कि जो ही हमने अगर हमें ये करना पड़ता तो हमें एक साथ सबके साथ बात करनी पड़ती। हमने क्या किया कि उनको छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया ताकि हम उनको इजीली मैनेज कर सकें। यहाँ पर भी हम ये कर रहे हैं कि अगर हम अपने पूरे बड़े नेटवर्क को, जिसमें हमने अभी अज्यूम किया कि हमारे पास 1000 नोड्स हैं, इवन इट में बी वन, अभी हमने कहा था कि देयर में बी 16 मिलियन नोड्स इन ए सिंगल नेटवर्क लाइक क्लास ए नेटवर्क्स, बट हमने फॉर द सिंपलिसिटी हमने अज्यूम कर लिया कि दिस नंबर इज 1000। अब मैंने क्या किया कि 1000 को मैं, अगर आप ब्रॉडकास्ट होती, अगर एक नोड भी ब्रॉडकास्ट करती तो बाकी 999 के पास ये ब्रॉडकास्ट जाती। अब इसका मतलब है कि 999 उस सिग्नल उस ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स को क्या करते, प्रोसेस करते, which means a wastage of energy as well as power as well as the bandwidth। मैंने 50 कर दिया, हर एक सबनेट में 50 है। अब अगर कोई ब्रॉडकास्ट करता है तो इट विल ओनली गो टू द 50 नोड्स, बाकी 950 नोड्स डजंट हैव टू प्रोसेस इट। So this is a good advantage. Now is it clear, Salman? Okay, so let me proceed then। तो हमने यहाँ पर भी यही बात की कि the device, the only device that's the, और फिर हम इसको अलग अलग करने के लिए क्या लगाते हैं, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम इनके दरमियान में रूटर्स लगाते हैं। रूटर्स में डू रिमेंबर ये ब्रॉडकास्ट गुजरने नहीं देता। If it's not
in that device. Salman, what you mean by this? But if it's not in that 50 devices, अगर 50 में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो if it's not in that 50, तो इस अगर उसमें 50 में नहीं है तो बाहर नहीं जाएगा, बाहर ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगी। यही हम चाहते हैं कि ब्रॉडकास्ट छोटे जगह पे जाए। दैट इज समथिंग विच वी वांट। जैसे अगर मैं इस स्लाइड पे दोबारा वापस आता हूं, मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर द टाइमिंग ये समझ लें कि यू हैव दिस नेटवर्क। नाउ दिस नेटवर्क you can see that there are 5 switches. Let it assume that every switch is of a 20 होते 24 पोर्ट switches हैं, I assume to be 25 assume कर लेता हूं। तो इसका मतलब ये है कि 25 switches के साथ 25 nodes के साथ I will have around 100 hosts here. अब अगर कोई एक भी इसमें ब्रॉडकास्ट करता है तो these 99 will receive this broadcast and will, because this is for example for it is he searching a device with a MAC address, so only one device will respond back. 98 will be just receiving some processing and ignoring. So this is something not desired. इसके मुकाबले में अगर हम ये करें कि अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं और उसको देखें, instead of a single network, now I divide it into 2 networks. Now अगर कोई इस नेटवर्क में है, इवन मैंने तो कोशिश कहा कि जी वी गो फॉर एग्जांपल 25 होस्ट। यहाँ पे एग्जांपल दी गई कि पहले मेरे नेटवर्क के अंदर 400 यूजर थे। Now I divided it into 2 segments, each with 200. तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई ब्रॉडकास्ट होता है तो that will never go to these 200 devices. In this way, the performance of the network will improve. Are you people with me now, or need further explanation? Salman said clear. What about others? Got it, sir. Okay, good. So now that is the reason मैं वापस अपनी उसी स्लाइड पे जा रहा हूं जो कुछ देर पहले मैं उस पर था। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि द ओनली डिवाइस दैट स्टॉप्स द ब्रॉडकास्ट इज द रूटर। तो जैसे अगली स्लाइड में आपने देखा, यहां से कोई ब्रॉडकास्ट आता है इस लैन 1 में अगर कोई ब्रॉडकास्ट आता है, इस इंटरफेस के ऊपर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। Why? Because router doesn't allow to pass the broadcasts, right? तो एक बात, each router do not propagate broadcast, जैसे मैंने कहा, each router interface connect to the broadcast domain and broadcasts are only propagated within that specific domain. यानी कि अगर कोई यहाँ से कोई broadcast आती है तो that will only will be propagated within this network. It will never go off this G interface, gigabit interface, right? Here we explain. Here you can see that a problem broadcast domain, क्या problem है, क्यों हम बड़े broadcast domain से खौफजदा हैं? Why? Is that these hosts can generate excessive broadcast and that excessive broadcast can negatively affect the network. That can negatively affect the network. Clear everyone? क्यों नेगेटिव? क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट अगर ले रहा हूं तो उस वक्त मैं कोई भी प्रोसेसिंग जो है वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पैकेट जब मेरे पास आएगा तो आई विल रिसीव इट ऑन माय फिजिकल इंटरफेस, आई विल सेंड इट टू द अपर लेयर व्हिच इज द डेटा लिंक लेयर, एंड डेटा लिंक लेयर पे पता चलेगा कि ये तो ब्रॉडकास्ट है। फिर मैं देखूंगा कि मेरे उसके लिए है कि नहीं है। Let it be, I have to send it to the upper layer even, which is the IP layer, and there I found that it is not for me. Then it is a wastage of resources. So what is the solution? The solution is to reduce the size of the network by creating smaller broadcast domain. जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, 400 यूजर्स हैं। हमने उसके 2 वो बना लिए, ईच सबनेट के अंदर, ईच सेगमेंट के अंदर हमने 200 नोड्स बना दिए। फर्दर वी कैन से दैट हमने हर एक में 100 कर लिए, तो वी हैव 4 सबनेट्स।
तो अगर कोई भी मसला कल अगर आता है, कोई भी डिवाइस में प्रॉब्लम आता है, तो उसकी ट्रबल शूटिंग करना भी हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है कि लेट इट अज्यूम दैट वी हैव एन नेटवर्क एड्रेस व्हिच इज दिस। कल हमने इस पे बात की थी काफी डिटेल में, that we have an IP address which is the this IP address which is, you know, this is not a public IP address. Which type of address is it? गुलेराना, किस किस्म का ये एड्रेस है? 172.16.0.0 कौन सा एड्रेस है? शाबाश। It is a private IP address. Good. So it is not a public IP address. इसलिए हमें आयाना से या RIR से लेने की या ISP से लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने ही नेटवर्क के अंदर, हम अपने ही यूनिवर्सिटी के अंदर, हम अपने ही घर के अंदर, बिजनेस के अंदर हम ये आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें /16 है, /16। तो जल्ला व्हाट दिस /16 रिप्रेजेंट्स? Salman, you can also respond what this /16 represents. The answer is that it represents the network part, which means I can have 2 power 16, which means 65,000, around 65,534 different networks. And each network will have then 2 power 14 hosts. Okay. लेकिन मुझे इतने ज्यादा होस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बताया गया कि जी आपके पास होस्ट कितने हैं? 400। जबकि इस केस में 2 पावर अगर 14 आप कर लें तो अराउंड 6 कितना आता है? 1600, सॉरी 16,000 समथिंग एग्जैक्टली। अभी हम देख लेते स्टार्ट एंड गो टू दी हियर एंड लुकिंग एट हियर वी से 2 पावर 14 which is equivalent to 16,000। बिल्कुल मैंने जैसे कहा 16,382 होस्ट पॉसिबल है, लेकिन मेरे पास तो 16,000 नहीं है। मेरे पास तो मुझे क्या कहा गया? हाउ मेनी आई हैव? ओनली okay। If I have 1400 nodes, sorry 400 nodes, what I need to do? I want to divide smaller chunks which is only 200। तो मुझे क्या कहा गया है कि जी आप instead of this address, instead of this address, you should use the change the subnet from /16 to /24। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैंने 8 बिट्स, जो कि अगर 16 बिट्स जैसे आप लोगों ने भी बताया कि 16 बिट नेटवर्क के हैं, तो फिर होस्ट के कितने हैं? अगर 16 bits are for the network, how many? Definitely Jahangir replied very rightly 16, क्योंकि टोटल 32 है। इसका मतलब है कि I have 16 different 16 bits for the host, अब मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल सा टास्क किया कि मैंने इसको 24 कर दिया। इसका मतलब है कि 16 बिट्स तो मेरे नेटवर्क के लिए हैं, 8 बिट मैंने अपने सबनेट्स के लिए बना लिए और 8 बिट मैंने छोड़ दिए फॉर दी होस्ट। इसकी वजह से अगर मेरे पास होस्ट जो हैं अब वो कितने हैं? 8। तो 2 पावर 8 इज this way I will have 2 power this, and मेरे पास सबनेट्स कितने पॉसिबल होंगे? 2 पावर 8। although 2 power 8 is a big number, मुझे सिर्फ 2 सबनेट चाहिए, which means not bad। so I go for only 2 power 8 subnets and there are around 254 hosts in each। तो मुझे मेरे होस्ट कितने हैं? 200। तो मेरे तो 254 is more than that। are you people understanding?
यस सर, ओके गुड. सो हमने क्या किया कि हमने नो सलमान, आई एक्सप्लेन अगेन दैट. सलमान हमने कहा कि हमारे पास 16 बिट्स तो थे नेटवर्क के लिए. आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दिस. और बाकी 16 बिट थे फॉर द होस्ट. मैंने उनमें से 8 बिट जो है वो सबनेट के लिए चुरा लिए, इन अदर वर्ड्स बोरो कर लिए. नाउ दिस इज फॉर द सबनेट एंड द रिमेनिंग 8 बिट्स आर फॉर द होस्ट्स. क्योंकि मुझे कहा गया है कि आई हैव ओनली 200 होस्ट्स, तो 2 पावर 7 कर दें. अगर मैं दोबारा उस पर चला जाऊं तो दिस इज 254. तो 2 power 8 is 256 minus 2 which is 254. 254 hosts are there, which is good. And I can have 2 power 8 which is, अगर मैं वापस चला जाऊं on the calculator, so it is 2 power 8 which is the number of subnets. So I have 256 subnets. How many segments, sorry, subnets? Although I need only 2, but the number of hosts are also the 250 254 minus 2 हो जाता है ना. तो 254 होस्ट के लिए मुझे कहा गया कि आपके 200 है, which is not bad, मेरी कंडीशन को पूरा कर रहा है. So here you can see that I have now so the solution is that I divide my network, I change my network or my subnet mask from 16, which was, agar main kahun 16, that means it was 255.255.0.0. So I change my subnet mask from 255.0 to .255.0.0 say 255.255.255.0. Is it any question? Today Inam joined us. That's good. But you should be regular, Inam. इस तरह अगर आप कभी-कभी क्लास में आएंगे तो this will not give you something good result, right? Understanding करनी है, skills सीखनी है, तो try to be regular. Time further, मैं बार-बार कहता हूँ, please come on time. 2 o'clock is good something. So let's move further. So हमने बात की कि अब हमने इस, अगर मैं इस पे चला जाऊं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, दिस सिर्फ व्हाइट स्क्रीन आ जाएगी. आई शेयर, वहां पे राइट डाउन भी करना इजी है. तो आई गो टू दी शेयर कंटेंट्स एंड हियर okay, I go to the whiteboard and on the whiteboard I write something. तो जब हमने कहा है कि हमारा इनिशियल जो हमारा आईपी एड्रेस था, हमारा जो इनिशियल आईपी एड्रेस था, that was 172. Once I should change the color. IP address was 72.16.0.0/24. दूसरा 16, सॉरी. इसका मतलब ये है कि मेरा सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0. sorry, it is 0.0, because 16 bits are for the network and the remaining 16 is for the host. So I changed this IP address for subnetting to 172.16.0.0/24, which means that the power. Okay. Here you can see now that with this my subnet mask changed to 255.255.255.0.
I think it's clear. Clear, everyone? व्हाइट बोर्ड में ओनली 17 लिखा है. 17 लिखने के बाद मैंने और भी, how is now? अब आ गया. Good. So Salman, you can see here that I change my subnet mask. I change my subnet mask from here to here. So initial the subnet mask was this one. Initial subnet mask. Okay. So initial the subnet mask was, and now क्यों pointer काम कर रहा? Initial the subnet mask was this one. Okay. So initially it was this one, right? And now changed to this one. So with this changing the IP address, sorry, the subnet mask, what is achieved? That now my network part is 172.16. The next 8 bits are for the number of subnets. So now you can see that I have 2 power 8 subnet, and 2 power 8 is 256. So I can have 256 subnets, and but I need only 2. But one thing, do remember, subnetting जब भी करनी हो तो 2 चीजें आप पूछेंगे. How many things? 2. How many? What is the number of subnets? कितने सबनेट चाहिए, और हर सबनेट के अंदर कितने होस्ट चाहिए. 2 बातें आप पूछेंगे. ओके. सो मुझे अब बताया गया है कि जी सबनेट जितने भी हो, लेकिन होस्ट सिर्फ आपके पास 200 है. इसका मतलब है कि 200 से ज्यादा कोई नंबर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. सो विद दिस 2 power 8 इट इज 256 minus 2 कर लें तो it is 254, which is more than 200. So which serve our case. Clear, everyone? Yes, sir. Okay, good. So I go back to my, I move back to my screen. So I'm here now. The what I did here, that I changed my this address from this one to, from this address I changed my address to, एक को मैंने दे दिया 172.16.0.0, और दूसरे को आप देखते हैं यहाँ पे पहले में 0 था और दूसरे में मैंने यहाँ पे 1 कर दिया. अगर मुझे अगला कोई सबनेट कहता तो मैं उसको डॉट कर देता 172.16.2.0. फिर लाजमी तौर पे उसके अंदर 254 है, तो देन इट विल बी फ्रॉम 1 2 3. आपको बताया था कि पहला एड्रेस जो होता है वो कौन सा एड्रेस होता है? नेटवर्क एड्रेस होता है. उसके और आखिरी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, और उसके दरमियान जितने एड्रेस होते हैं वो यूजेबल एड्रेसेस कहलाते हैं. कल हमने ये बात डिस्कस की थी. इज इट क्लियर एवरीवन? तो हमने कहा था कि इसका मतलब है कि हमारा पहला इसमें ये जो होगा 172.16.0.0, दिस इज माय नेटवर्क एड्रेस. इसमें पहला एड्रेस क्या हो जाएगा? 1. यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा. इन दिस वे हाउ मेनी आई कैन हैव 254 होस्ट्स. इस तरह यहाँ पर भी आई हैव द 254 होस्ट्स पॉसिबल. This 0 represent that it is the first subnet. This 1 represent that it is the second subnet. The 3 will be the third 2 will be the third subnet, and so on. So in this way I can have multiple subnet. हम इसमें पूरी व्यू आपके सामने अभी मैं कोशिश करूंगा कि वो बड़ा अच्छा तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है. तो विद इन मिनट्स इंशाल्लाह वी विल बी फर्दर, लेकिन आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को ये बात मेरी क्लियर हो जाए कि ब्रॉडकास्ट आर ओनली नाउ प्रोपेगेटेड विद इन दी स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन. अब पूरे 400 इन दिस एग्जांपल 400 नोड्स तक ये ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा, बल्कि ओनली 200 तक जाएगा. क्लियर एवरीवन? Okay, yes. So let's move further, and we are here. Here you can see that the subnetting
subnetting can be done based upon, जैसे मैंने पहले आपको बताया, it can be based upon the location. मिसाल तो this is the electrical engineering building, this is the computer system building, this is the administration building, this is the academic block. So based upon this, you can do the subnetting, right? You can make your big network convert your big network into small networks, and these small networks can be based upon the location. Number one. Number two, it can be based upon the function. It can be based upon the function. जैसे मैंने अभी कहा, it might be that you are in a company where you have the accounting staff, where you have the human resource people, where you have administration people, where you have the students. So there are 4 different peoples. हर एक की डिमांड डिफरेंट. क्यों हम इसको फंक्शन के वाइज कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि अकाउंटिंग वालों को अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होगी, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीजों की जरूरत होगी. तो हम उनको बड़ी इजीली एक्सेस दे सकेंगे कि जी ओनली जी, मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज है जो कि स्टूडेंट, अगर सबके लिए हम एक ही सबनेट बनाते हैं, तो अगर कोई हम राइट्स देते हैं तो दिस राइट विल बी फॉर ऑल देम. तो स्टूडेंट जो होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें देख रहे होंगे, स्टूडेंट जो होंगे वो ह्यूमन रिसोर्स की चीजें देख रहे होंगे, ह्यूमन रिसोर्स वाले स्टूडेंट की चीजें देख रहे होंगे, व्हिच इज नॉट डिजायर्ड. So what need to be done? We divide it into smaller pieces. Like now human resource का काम ये है कि वो सिर्फ स्टाफ की चीजों को देखें, उनका और स्टूडेंट के साथ कोई तल्लक नहीं है. इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो भी स्टाफ के साथ है, अकाउंटिंग वाला का पैसों के साथ है, उनका ना ही तो स्टूडेंट के साथ काम है ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम है. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स यू कैन डू दी मेक द सबनेट्स व्हिच कैन वर्क. Thirdly, जैसे मैंने आपको भी बताया कि you can do depending upon the devices. Like for example, these are the servers. So you keep the servers, क्योंकि servers तक खास लोगों की रसाई होनी चाहिए और लोगों की रसाई नहीं होनी चाहिए. So only the servers can be in a certain subnet. The other devices can be another subnet. So in this way, you can see on the screen that we divided them based upon the location, based upon the function, or based upon the device types. Clear? So subnetting reduces नेटवर्क ट्रैफिक, और जब ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक आपके नेटवर्क पे कम हो जाती है तो उससे क्या फायदा होता है? इट इंप्रूव्स द नेटवर्क परफॉर्मेंस. नंबर 2, इट कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज बिटवीन द सबनेट. जैसे मैंने अभी कहा कि आप स्टूडेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन की चीजों को नहीं देखना, एडमिनिस्ट्रेशन ने अकाउंटिंग की चीजों को लेट कर नहीं देखना. तो वी कैन कीप these devices or these files or these resources secure. And number 3, subnetting reduces the number of devices affected by the abnormal broadcast traffic. अब स्टूडेंट के उसमें कोई ब्रॉडकास्ट कोई कर रहा है तो वो अब एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि दरमियान में क्या लगा हुआ है? राउटर लगा हुआ है. और आपको भी मैंने कुछ देर पहले बताया कि राउटर से ब्रॉडकास्ट नहीं गुजरता. तो इस वजह से अगर यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है स्टूडेंट के नेटवर्क में, इट विल नेवर गो टू द अकाउंटिंग, इट विल नेवर गो टू द ह्यूमन रिसोर्स, इट विल नेवर गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इट विल नेवर गो टू द इंटरनेट. Clear everyone? Because this something which has been broadcasted in the student network is only for a student's network now or subnet now. It shouldn't go to the human resource and disturb it, because for them it is an abnormal broadcast. So what are the reasons for which we do I explained you earlier that based upon the location, or maybe based upon the function of the devices, or maybe depending on the device types, we implement the subnetting. Clear everyone? Now to the real topic, which is the subnet and IPv4 network. So let's start. टॉपिक के वाइज को लिया, हमने कहा कि जी आसान ये है, लाजमी नहीं है, इजी कि हम इनको इस बाउंड्रीज पे सबनेट करें, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है, हमारी मर्जी है. ठीक है, क्योंकि क्लास ए इसको अगर जब किया जाए तो मोस्टली ये आपको पता है कि 8 बिट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क. इसका मतलब है तो दिस इज ए क्लास ए नेटवर्क. अगर ये है तो इट इज ए क्लास बी नेटवर्क, इट इज ए क्लास सी नेटवर्क. तो हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है. डजंट मीन कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि यू मस्ट हैव टू टेक /8/16 और /24.
You can take a network with slash 24 and you can subnet as slash 25, 26, 27, whatever you want. Clear, everyone? So with this, what is the advantage? You can see that this prefix length has a relation with the number of hosts possible in a subnet. Like for example, if it is /8, so it is /8, it means how many subnets are possible, how many networks are possible? 126. 126 with each network having 16 million, around 16 million hosts. Similarly, if you have the /16, so you have around 16,000 networks, which is 2 power 14, and there is in each network you can have how many hosts? 65,534, which is basically 2 power 16. क्योंकि अगर 16 नंबर जो है 16 स्लैश का मतलब होता है these are for the network. इसका क्या मतलब होता है? For the network. इसका मतलब बाकी 16 किसके लिए है? For the hosts. अब हम चाहें तो ये होस्ट में से एक बिट चुराना चाहें, अगर एक बिट चुराएं फॉर एग्जांपल, कौन मुझे जवाब देगा? अगर मैं एक बिट चुराऊं, बोरो करूं, हाउ मेनी सबनेट्स आर पॉसिबल? शाबाश, who will respond? If I have a /16 network, but I borrow only, इसका मतलब है कि नेटवर्क के लिए मेरी 16 बिट्स है, इसका मतलब है कि होस्ट के लिए भी मेरी 16 बिट्स हैं, ये मतलब है ना। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस होस्ट में से एक बिट चुरा लिया फॉर दी सबनेट और 15 रहने दिए फॉर दी होस्ट। हाउ मेनी सबनेट्स आर पॉसिबल? पहले मेरे पास होस्ट कितने पॉसिबल थे? 2 power 16, 2 power 16, which is equal to 65,535. कौन जवाब देगा? अब मैंने एक इसमें से बिट दे दिया सबनेट को, बाकी कितने रह गए हैं? 15. इसका मतलब है कि 2 power 1, 2 की पावर 1, जहांगीर इट इज 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 किसके बराबर होता है? 2 के। इसका मतलब है कि आई हैव ओनली विद दिस ऑप्शन I can have only 2 subnets with each subnet having 2 power 15, which is around 32,000 hosts, not 128. If I borrow 2 bits, so I have then 14 bits here. So I can have 2 power 2, which is 4 subnets with each 2 power 14, which is around 8,000, 16,000. Is it clear now? यानी जितने बिट्स, याद रखें जहांगीर, जितने बिट्स आप बोरो करें उसकी 2 पावर इज द नंबर ऑफ सबनेट, बाकी जितने रह जाए 2 पावर देयर इज द नंबर ऑफ होस्ट्स। तो जितने आप सबनेट्स इंक्रीज करते जाएंगे, हर सबनेट में होस्ट कम होते जाएंगे, और हम यही चाहते हैं, क्योंकि जितने होस्ट कम होंगे आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा हो जाएगा। क्लियर एवरीवन नाउ? Yes, sir. Clear. Good. What about you, Tajalla? Salman, what is your status? Is it clear? Here it has been, whatever I explained to you is given here. The slide is showing that you have a network whose address is this one. 10 dot, okay, good. 10.0.0.0/8. इसका मतलब ये है कि you can have, it is a class, I can say to some extent it is a class A, where I have 8 bits for the network and 2 power 7 is
128 minus 2, so इसका मतलब है कि I can have 126 networks. 126 networks. Now he's saying me that you subnet it, subnet it means divide it by using a /16 or a /24 mask. It means your subnet mask, which was initially 255.0.0.0, इसका मतलब है कि मेरा सबनेट मास्क क्या था 255.0.0.0. यहां मुझे कहा जा रहा है कि आप अपना सबनेट मास्क तब्दील कर लें 255.255.0.0. So now this is representing these 8 ones. 255 means 8 ones are representing the number of subnets. So there are 8 bits for the subnets. So 2 power 8 is 256. So I can have now 256 number of possible subnets. How many subnets possible? 256. Very good. Is it clear, everyone? How many subnets are possible now? With this condition, 2 power this condition. I change the color of my pen ताकि हम थोड़ा सा different रह सकें. Let it be this one. So if this brown one is showing now, yes, very good. 256 Salman Gulerana. That now I have, और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि it is showing that how many subnets are possible? 256. And within each subnet, now how many bits are left for my host? 16. And 2 power 16 is 65,534. Okay? So you can see here that the number of hosts which are possible in each subnet are 65,000. Clear everyone? Administrators के लिए this is very important. इसलिए कहीं भी समझ नहीं आ रही, stop me, no issue. We have the time to make it clear. तो इसका मतलब देखिए आपको अभी हमने कहा 256 है ना, तब होस्ट के कौन सा बिट है ये वाला, तो ये it will start क्योंकि 256 है, तो it will start from 0 and will end at 255. So my first subnet will have the address 10.0.0.0 क्योंकि हमने कहा कि हमारा ये एड्रेस है IP एड्रेस. The second one will be 1.0.0. The third one will be 2.0.0. The fourth one will be 4.0.0. The last one will be 10.255. It is starting from 0 and ending at 255. So how many subnets are there? 256. जैसे आप लोगों ने पहले मुझे बताया. अब हर एक सबनेट के अंदर how many hosts will be there? It will be the 65,534, which is 2 power 16 minus 2. So it will start from 10 dot, because the first address will be the network address. It means 10.0.0.0 will be the network address. Dot 1 will be the first usable address. Dot 254 will be the last usable address. And 255 will become the broadcast address. हमने कल ये बातें explain की थी. Clear, Salman, Jahangir? Yes, sir. Good. इसी तरह my second network will start from 0.0. This will become my network address, because all zeros जो होते हैं that represent in the host, they represent the network. All ones in the host part represent the broadcast. So this is my network address. This is my broadcast address. And in between these all are the usable addresses, which are 65,534. So clear? Is it clear, everyone? Similarly, if I go even for instead of 16, I go for 24. So my subnet mask will change to 255.255.255.0. So now this is my network address. It will represent the network address in the IP. This will represent the 16-bit will represent the number of subnets, and the last one represent the number of hosts.
hosts are possible now. Each subnet 2 power 8 minus 2, which is equal to 254. तो आप देख सकते हैं कि in each subnet you have how many hosts possible? 254. From where this 254 came? It's the last 8 bits. From where I will get the number of hosts? From where I will get I change the color again. And I make it, for example, blue. This blue one, this one is representing, these 16-bit are representing the subnets, and 2 power 16 is how much? 65,536. So now I have more subnets, and in each subnet I will have small number of hosts, which is 254 in this case. So this is the first address. This is the first address, which is the network address. All ones kar do, so this will become the broadcast, and in between these, the network and the broadcast, we have 254, which is starting from 1, ending at 254. So you can see there the total number of hosts are 254. Clear, everyone? No. Okay, I explain again. सलमान, अभी हमने क्या कहा कि अगर हमारा एड्रेस तो ये था, .8/8, हमें कहा गया कि आप /8 से बढ़ के /24 पे चले जाओ, अपने मास्क को तब्दील करो. सबनेट की समझ नहीं आई. ओके, तो चला, आप कल मेरे साथ थी, हमने बात की थी सबनेट की. मैं दोबारा उस पे जाता हूँ. यस, ओके, नो प्रॉब्लम. आई एक्सप्लेन सबनेट का क्या मतलब है. एक्सप्लेन. आई गो टू दी, पहले मैं जाता हूँ I go here and I show you again that I'm writing what I'm writing on my command prompt. Can you see on my command prompt? Yes, Tajalla, I wrote ipconfig. So you can see that my IP address is 192.168.1.3 and my subnet mask is 255.255.255.0. अगर मैं आपको कहूं तजल्ला कि इसको आप स्लैश नोटेशन में लिखें, तो मैं अपने आईपी एड्रेस को कैसे लिखूंगा? क्योंकि इसमें अब आपको देखो 24 वंस नजर आ रहे हैं. 255 का मतलब होता है 8 वंस ना. ये राइट है. तो इट इज 192.168.1.3/24. तो मैं अपने आईपी एड्रेस को यूं भी लिख सकता हूं 192.168.1.3/24. गुड. अगर यहां तक आप मेरी बात से एग्री कर गए तो बात आसान हो गई. अब हमने कहा कि जी मैं जाता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पे जाता हूं. ओके, और वापस बोर्ड 1 पे ही. अब अगर मुझे कहा गया कि जी आपका जो भी एड्रेस था, आप उस जो इस केस में मेरा एड्रेस जो था that was, is it visible my screen? My address which was 10.0.0.0/8 था. इसका मतलब ये है कि मेरा सबनेट मास्क था 255.0.0.0. मुझे कहा गया कि आप अपना इसको, इसका मतलब ये था कि मेरे पास 8 नेटवर्क हैं. अगर 8 बिट्स फॉर द नेटवर्क हैं, इसका मतलब है कि 2 पावर is not visible. Is visible now? Yes. तो आपको मेरा आईपी एड्रेस जो था वो ये है, जो एग्जांपल अभी हमने ली है. इसका मतलब है कि मेरा सबनेट मास्क ये है. डू यू एग्री विद मी अप टू दिस पॉइंट? यस. ओके, गुड. अब मैंने कहा कि जी अगर ये मेरा आईपी है
मुझे कहा गया कि आप अपना एड्रेस को तब्दील कर लें 10.0.0.0/24 पे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सबनेट मास्क तब्दील कर दिया गया 255.255.255.0 पे। इसका मतलब ये है कि मेरे जो 8 बिट्स हैं वो तो नेटवर्क के लिए हैं। इसका मतलब अब क्या है कि 8 बिट्स फॉर द नेटवर्क, फॉर द नेटवर्क representing the number of networks, in other words. नेक्स्ट, इसमें मैंने 8 से 24 पे जंप की। इसका मतलब कि 16 बिट्स for subnets which means small networks, and the remaining 8 bits for hosts. Agreeing or not? Do you agree with me, everyone? Okay, yes. Tajalla asked me that how 16 are for the, अगर मैंने ये जितने भी इनिशियली, अगर आप पहले वाला केस में मेरे साथ रही, पहला वाला केस क्या था 10.0.0.0/8। इसका मतलब ये है, अगर मैं पहली एग्जांपल में रहूं तो इसका मतलब ये है कि आई हैव 8 बिट्स फॉर द नेटवर्क and 24 bits for the host. Agreeing or not, Tajalla? Yes. अब मुझे कहा गया कि आप 8 से /24 पे चले जाएं। मुझे कहा गया कि आप 10.0.0.0/24 कर दें। इसका मतलब ये है कि आप अपने नेटवर्क जो होस्ट के पार्ट था, जो 24 बिट्स था, वो 8 बिट हो गया। इसका मतलब है कि फिर ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। तजल्ला नाउ, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब है कि 8 बिट नेटवर्क के लिए उसी तरह जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे थे, यस सर गॉट इट, 8 बिट वही नेटवर्क के लिए, लेकिन मैंने होस्ट को अब 8 बिट्स दे दिए हैं। होस्ट को अब मैंने 8 बिट्स दे दिए हैं। अब इसका मतलब जो कि पहले 24 बिट थे, तो बाकी 16 बिट किसके लिए चले गए? सबनेट के लिए चले गए। ओके गुड। तो यही बात हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। अब मेरे 16, ओके गुड। तो यहाँ पे अगर ये बात समझ आ गई तो अब मैं मुझे थोड़ी सी भी आपको टाइम देंगे। टाइम इस बात का कि अगर सेकंड कंडीशन में मैं जाऊं तो 2 पावर 8 which is 256। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स विच आर पॉसिबल आर 8 बिट फॉर द नेटवर्क है। हर नेटवर्क के अंदर, ये तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स, हर नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क्स, हर नेटवर्क के अंदर 16 है, तो 2 पावर 16 इज 65,534 सबनेट्स ईच नेटवर्क। क्लियर है यहाँ भी? एंड देन मैंने क्या किया, 8 बिट है फॉर द होस्ट, तो विद 254 are the number of hosts in each subnet. Now let me know whether it is clear or not. Thanks to the whiteboard, it helped me a lot. Yes, sir, from Zella. What about others? Inam is with me or not? Inam is with me.
इनाम, इज इट मेकिंग सेंस? आपके लिए तो मैंने मैसेज उसको भी दिया था, असद को, कि वो आपको बताया कि व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आपका थर्ड मॉड्यूल का एग्जाम लास्ट सैटरडे से एक्टिव है और इस सैटरडे तक एक्टिव रहेगा। प्लीज read these chapters which are related to the exam and go for the exam. Clear everyone? And पहले भी मैंने बताया था कि अब गुलेराना, तजल्ला एंड सना, यू हैव टू टेक दीज एग्जाम्स। मैंने आपको उस ग्रुप से निकाल के यहाँ डाल दिया हुआ है, कंप्लीट हो चुके हुए हैं और वो अपना काम कंप्लीट, वो खत्म हो चुका है। तो दो में करने की बजाय आई हैव शिफ्टेड यू टू दिस ग्रुप, to this new class, and you are part of this class now, so you have to take the exam. इसका मतलब नहीं कि आप एग्जाम ना लेंगे। Clear everyone? Rana Tajalla and inform Sana as well. Clear. Good. Okay. So my this concept is clear now. What is, how I calculate the number of subnets, number of hosts, number of networks? Anyway, now where is Asad? उसने मुझे last time message किया था कि he will be taking the classes regularly now. Do you are in contact with him? Why he is not taking the classes? मुझे उसने लास्ट वीक मैसेज किया था कि he will be taking the classes regularly now. Both of you belong to the same village? Are you from some village or some city? I don't know. No sir. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इस वक्त आप कहाँ से लॉग इन है? जगह कौन सी है? You are from Malakand, and Asad is from? He is from D Khan. Asad is from D Khan. Android, he is D Khan. Okay. So अगर आपका उससे राब्ता हो तो उसे बताएं कि आपने तो कहा था क्लासेस लूंगा, क्योंकि क्लासेस नहीं लेंगे तो देन अंडरस्टैंडिंग पढ़ के नहीं हो सकती। तो अब आपको के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूं कि अगर हम वापस जाएं, तो अभी हमने क्या कहा था कि अगर हम /24 पे चले जाएं, हम /8 टू /24 मास्क पे चले जाएं, इसका मतलब ये है कि मेरा सबनेट क्या हो गया है, फ्रॉम 255.0.0.0 से 255.0.0.0 से चेंज होकर 255.255.255.0 हो गया है। ओके, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 16 इनिशियली क्या था, ओनली नेटवर्क पार्ट था, होस्ट पार्ट था, 8 bit for the network and the remaining 24 bit for the host. 8 bit for the network and 24 bits for the host. Now it changed to number of networks के लिए 8 ही है, number of subnets is 16 bits and the number of host, तो do remember के सबनेट्स को हम बोरो कहां से करते हैं, होस्ट से। पहले होस्ट की तादाद की बिट्स 24 थी, अब 8 रह गई। तो अब हर एक के अंदर 2 पावर 8 होस्ट होंगे, तो 2 पावर 8 मींस इक्वल टू हाउ मच? इनाम 2 पावर 8 मींस
मैंने सर्कल किया हुआ है ऑन स्क्रीन। टू 54, very good. So it is 254 hosts in each subnet, and how many subnets are 2 power 16, which is equal to 65,536. So I have now 65,000 around 500 subnets. Each subnet have 254 hosts, as you can see here, starting from 1 and ending at 254, right? So it each have abhi dekho, the next subnet jo tha, that is 1, next subnet is 2, and going up to 255 and so on. So each subnet have 254. The first address is the network address, the last is the broadcast address, and in between the network and the broadcast, देखिए ये स्टार्ट कर रहा है 0 से, ये पहला एड्रेस है 1, इसका मतलब उससे अगला है, एंड कर रहा है 254 पे, और इससे अगला क्या है 255. कैन यू सी? तो इसलिए हम कहते हैं कि पहला जो होता है एड्रेस, दैट इज, क्योंकि आपको पता है 2 power 8 इज 256, नॉट 254. इन 256 में, इस 256 में पहला एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क का हो जाता है, आखिरी ब्रॉडकास्ट का हो जाता है, and in between the network and broadcast 254 remaining address are used in this example as the usable addresses. Clear everyone? Good. So let's me move further. लाजमी नहीं कि आप /8/16/24 की बाउंड्रीज पे काम करें. जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कि you have been given a network and that network was a /24 network. इसका मतलब इसका सबनेट मास्क क्या था 255.255.255.0. Now I changed, I borrowed, इसका मतलब है कि इसके नेटवर्क में 24 बिट्स थे. इसका मतलब है कि होस्ट में कितने होंगे, कौन बताएगा? जी इनाम बताएगा. होस्ट में कितने होंगे बिट्स? How many number of bits are for the host? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टोटल आईपी एड्रेसेस ऑफ 32 बिट्स. Among in this example, the from left to right, the first 24 bits are for the network, left, which will be used for the host. 8 bits Inam replied. 8 bits. अब मैंने मुझे कहा गया कि जी चेंज इट टू /25. इसका मतलब ये है कि मुझे कहा गया है कि नेटवर्क के लिए 24 बिट्स ही होंगी, 1 बिट सबनेट के लिए, और होस्ट की तादाद की बिट्स हो गई हैं लाजमी तौर पे 7. इसका मतलब ये है कि 2 power 24 नेटवर्क्स हैं, which is around 2 power 24 is probably 16 million. So there will be 16 million networks and 2 power 1, which means the total number of subnets possible are 2. जैसे यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, अगर मैं /24 पे चला गया हूँ, /25 पे सॉरी, तो the possible number of subnets are 2, while the number of hosts 2 power 8 से कम होकर 2 power 7 हो गए, and 2 power 7 is 128. 128 minus 2 कर दें तो how much, what is the result? So 2 power 7 minus 2 is 126. ठीक है. अब मुझे कहा गया नेक्स्ट एग्जांपल में कि you change your subnet prefix length, change your prefix length from /24 to /26. इसका मतलब ये है कि मेरे आप सबनेट में
2 बिट्स आ गए हैं। इसका मतलब है कि मेरे होस्ट में कितने आ रहे गए? 6। अब अगर मेरे पास 2 है सबनेट्स, इसका मतलब है कि 2 पावर 2 which stand for how many subnets are possible? 4। और अब 6 बिट्स हो गए हैं, तो 2 पावर 6 is 64। 64 minus 2 is 62। So I think it is clear that looking at how many subnets are required, you will be given an IP address. You will be informed about the number of subnets required and the number of hosts. And based upon this, you have to come up with the, अब देखें, अगर चले एक चीज और भी, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर एक बिट पहले मेरा सबनेट मास्क क्या था 255.255. जब /24 था तो माय सबनेट वाज 255.255.255.0। अब मैंने अगर एक बिट यहां से चुराया, बोरो किया, तो नाउ माय सबनेट मास्क विल बिकम, देखें पहले 8 बिट्स, फिर 8 बिट्स 255.255, फिर 255। अब एक बिट मैंने चुरा लिया है, नेटवर्क होस्ट से चुराकर सबनेट में डाल दिया, सबनेट में डाल दिया। सो नाउ आई हैव, नाउ इट, अगर आप इसको करें कन्वर्ट इनटू द बाइनरी, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि याद रखने के लिए करें कि अगर मैं आपको अभी लैपटॉप उसमें भी ले जाऊंगा कैलकुलेटर पे, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर एन एग्जाम, वो भी इंटरनेशनल एग्जाम में, तो आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होगा। So you have to remember this, that the first bit have a power of 1, second bit have a power of 2, third is 2 power 2 4, 8, 16, 32, 64, 128। इसलिए अब आपका सबनेट मास्क क्या बन गया है? 255.255.255. not 0 but 128। Is it clear everyone? गुड। इसी तरह अगर मैंने 2 बिट चुराए, 2 बिट बोरो किए, एज यू कैन सी हियर, तो पहले बिट की पावर है 128, दूसरे बिट की पावर है 64, add them and you get 192। so your subnet mask will be no more what 255.255.255.0, but it will become 255.255.192। अगर आप 3 बिट चुराते हैं, 3 बिट बोरो करते हैं फ्रॉम दी होस्ट, तो पहले बिट की पावर है 128, दूसरे की 64, ऐड करें तो 192, थर्ड ये 32, तो 32 इसमें ऐड करें तो you get 224। in this way your subnet mask changes। so all the 8 subnets will have now subnet mask 255.255.255.224। clear everyone? आज मैंने बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट थोड़े से आप सब लोगों के लिए, एक्सेप्ट जहांगीर के अलावा, क्योंकि उसने ये चीजें पढ़ी होंगी, पढ़ी हुई है जहांगीर पहले से। ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन डेफिनेटली आपके 2 या 3 2 तो मिनिमम सब्जेक्ट्स मुझे पता, नो सर, अच्छा, तो मुझे 2 सब्जेक्ट जो है वो इस टॉपिक पे हैं। अब मैं जो आपको काम देने जा रहा हूं, दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू पीपल। पहले मैं कोशिश करता हूं कि मेरे यहाँ नेटवर्क से अगर ये चल सकता है और आपको आवाज आती है तो इट विल बी नाइस, और अगर नहीं आती तो देन इट विल बी एन असाइनमेंट फॉर यू पीपल। आप जाएं यहाँ और मॉड्यूल्स में और चैप्टर नंबर 11 में चैप्टर नंबर 11 में, और चैप्टर 11 के 4th टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन, सॉरी सबनेटिंग। और सबनेटिंग में यहाँ पे इसने दिया हुआ है वीडियो, और इसमें 2 वीडियोज हैं, बड़ी मजेदार हैं। वन इज दी 11.5.3 which is video the subnet mask, और फिर वीडियो सबनेट विद मैजिक नंबर।
ये दो बातें रन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये आपके आवाज आपको आए, ना भी आए तो आप लोगों के पास वो है ये टूल, ये साइट आपके पास है netcat.com का, मैंने आप लोगों को पूरी पावर दी हुई है, तो आप इसको, आपको चाहिए कि आप इसको सुन सकें. Let me run it and change from here whether it is possible. Are you getting the voice now? No, sir. Now, anyone? Ladies and gentlemen, are you getting the voice? Not mine. The now. Now, please let me know. Ladies and gentlemen, are you getting? No voice. No, sir.
What is the scenario now? No sound. मैं इस चीज को वो करूंगा कि ये आप लोग मेरी चीज आया करें. दिस इज योर ओन टास्क. दिस इज